ایک ٹائم تھا جب زمین خاموشی سے سانس لیتی تھی. ایک ٹائم تھا جب کسی بھی انسان نے اسے اپنا گھر نہیں کہا تھا. جنگل ہریالی سے بھرے ہوئے تھے اور سمندر روشنی سے. زندگی ہر طرف پھل پھول رہی تھی، آزاد اور جنگلی. یہ کریٹیشیس کا دور تھا، ایک ایسا دور جس میں اتنے بڑے بڑے جانور رہتے تھے جن کے بارے میں امیجن کر کے ہماری سوچ دنگ رہ جاتی ہے. زمین پر ٹرائی سیراٹوپس کے جھنڈ اس طرح گھومتے تھے جیسے سورج کو کبھی سردیوں کا مطلب ہی پتہ نہ ہو. آسمانوں میں ٹیروسورس اپنے پروں سے ہواؤں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. سمندر میں پروں اور بڑے بڑے دانتوں والے مونسٹرز راج کرتے تھے. اور ان سب کے درمیان زمین کا بے تاج بادشاہ ٹیرکس تھا. 2 ٹن گوشت، خطرناک پنجے اور نوکیلے دانت، اور اتنی ہی پرانی شکاری فطرت جتنی کہ خود پرانی زمین. یہ دنیا خطرناک تھی لیکن اپنے پرفیکٹ بیلنس میں تھی. ہر جانور کا ایک کردار تھا، ہر دھڑکن کا ایک مقصد تھا، اور ہر شکار کا ایک ٹائم تھا. لیکن اس سب کے پیچھے قسمت اپنا خوفناک کھیل کھیل رہی تھی. کسی جانور کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ہر قدم، ہر سانس اور ہر دہاڑ اس دنیا میں آخری ہونے والی تھی. ان سے کروڑوں میل دور کائنات کے گھپ اندھیرے میں موت اپنا سفر شروع کر چکی تھی. ایک بڑا پتھر کا ٹکڑا جو کہ 2 پرانے پلینٹس کے ٹکراؤ سے پیدا ہوا تھا، ایک سفر پر نکل چکا تھا. ایک سفر جو لاکھوں سالوں تک چلا. یہ پتھر مارس اور جوپیٹر کے درمیان سے چپکے سے بغیر کسی آہٹ کے گزرتا رہا. ادھر زمین اپنے نیلے آسمان کے نیچے مستی سے گھوم رہی تھی. موسم دھیرے دھیرے ہمیشہ کی طرح بدل رہے تھے. نئے کانٹیننٹس بن رہے تھے اور پہاڑ بڑے ہوتے جا رہے تھے. یہ ایک زندہ پلانٹ تھا لیکن بہت نازک. اسپیس کا ایک پتھر کا ٹکڑا سب کچھ بدلنے کے لیے کافی تھا، اور وہ آ رہا تھا اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا. ادھر نیلے آسمان کے نیچے زمین توانائی سے ابل رہی تھی. آتش فشاں پھٹ رہے تھے اور لاوے کی ندیاں نئے کانٹیننٹس کی لائنیں کھینچ رہی تھی. ہر جھٹکا زمین کی ایک سانس تھا. یہ ایک ایسی دنیا تھی جو لگاتار بدل رہی تھی، جہاں زندگی اپنے آپ کو ڈھالتی، بڑھتی اور پھیلتی جا رہی تھی. نارتھ کی وسیع میدانی زمینوں پر اور پہاڑوں کے نیچے پھیلی چوڑی وادیوں میں اینکائلوسورس کے جھنڈ دھیرے دھیرے بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. ان کی ہڈیوں جیسی جلد دھوپ میں ایسے چمکتی تھی جیسے زندہ ڈھالے ہوں. ساؤتھ میں ہیڈروسورس کے گروپس ندیاں پار کرتے تھے. ان کی آوازیں وادیوں میں ایسے گونجتی تھی جیسے پرانے گیت. دلدلوں میں چھوٹے چھوٹے کومسوگینتھس گروپ بنا کر تیزی اور تجسس سے گھومتے تھے، اور پودوں کے پیچھے ان سے بھی پھرتیلے شکاری گھات لگا کر چھپے رہتے تھے. جنگلوں میں پودوں کی نئی نئی اقسام ایسے پھل پھول رہی تھی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. کیڑے مکوڑے پودوں کا رس چوس رہے تھے، اور آسمانوں میں ایسے پنکھوں کی پھڑپھڑاہٹ گونجتی تھی جنہیں ابھی ڈر کا مطلب پتہ ہی نہیں تھا. درختوں کی شاخوں کے درمیان چھوٹے پرندے اڑنا سیکھ رہے تھے. مائکرو ریپٹر اپنے گہرے اور چمکدار پروں کے ساتھ درختوں کے درمیان اڑتے پھرتے ہیں، اور درختوں کی جڑوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے میملز الرٹ اور ہوشیار ہو کر رہتے تھے. یہ سب ایسے فیوچر کے لیے تیار تھے جس کے بارے میں یہ خود بھی نہیں جانتے تھے. یہ دنیا حرکت اور آوازوں سے، پیدائش اور موت سے بھری ہوئی تھی. ایک نازک بیلنس جو ایک نہ نظر آنے والی کھائی کے اوپر لٹک رہا تھا. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور زندگی بالکل پرفیکٹ تھی. لیکن وہ پتھر لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے زمین کے قریب پہنچ چکا تھا. وہ جیسے ہی زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر داخل ہوا، اس کی رفتار اور تیز ہو گئی. اس کی سطح گرم ہونے لگی اور اب وہ ایک آگ کے گولے کی طرح بن چکا تھا. زمین سے دیکھنے پر ایک چمکدار لکیر دکھائی دی جو کہ لمحہ با لمحہ روشن ہو رہی تھی. وہ آگ کا گولا ہر سیکنڈ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور 70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ہماری زمین کی طرف بڑھ رہا تھا.
10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर ऐसी ताकत के साथ हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा था जो कि हम सोच भी नहीं सकते। उसका निशाना था युकाटान नामी आइलैंड। वहां जहां समंदर एक खूबसूरत दायरे की शक्ल में मुड़ता था, तकदीर अपना वार करने जा रही थी। उसके नीचे डायनासोर्स अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे। किसी ने आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई, कोई नहीं समझ सकता था कि क्या होने जा रहा है। आसमान का रंग बदलने लगा और परिंदों ने गाना बंद कर दिया। जानवर ऐसे सहम गए जैसे जमीन की सांसें रुक गई हो। फिर एक तेज रोशनी दिखी जिसने सूरज को ढक दिया। एक धमाका हुआ जिसकी कोई गूंज नहीं उठी क्योंकि वो खुद आवाज की हद को पार कर चुका था। वक्त जैसे रुक सा गया। उस पत्थर ने आसमान के आखिरी चंद किलोमीटर का सफर पलक झपकते तय कर लिया था। उसकी लपटों ने फिजा को जला के रख दिया और दिन ऐसे भड़क उठा जैसे 1000 सूरज एक ही साथ निकल आए हों। और फिर वो टकरा गया। समंदर ऊपर की तरफ फटा और एक ही सेकंड में भाप बनकर उड़ गया। उस टकराव से 10 करोड़ मेगाटन बमों के बराबर एनर्जी खारिज हुई थी। जमीन की तह रेत की चादर की तरह मुड़ गई, चट्टानें पिघल गई और आसमान आग से भर गया। हजारों किलोमीटर के दायरे में कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। एक जबरदस्त धमाके की लहर पूरे प्लेनेट पर फैल गई। दरख्त झुक गए, फिर गायब हो गए और एक ही सेकंड में जल के राख हो गए। खुद हवा ही आग बन गई थी। समंदर के अंदर 1 किलोमीटर से भी ऊंची लहर उठी। पत्थरों के टुकड़े उड़कर दुनिया के कोने कोने में जा गिरे। सुनामी ने समंदरों को हिला कर रख दिया और हजारों किलोमीटर दूर साहिलों को तबाह कर दिया। समंदर ऊपर उठे, फिर पीछे हटे और अपने साथ हर चीज को बहा कर ले गए। पूरा प्लेनेट एक चीख में बदल गया था। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ था। आसमान से रोशनी के टुकड़े गिरने लगे। ये वही पत्थर थे जो टकराव के वक्त ऊपर उठे थे और अब पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर दहकते हुए वापिस आ रहे थे। छोटी छोटी तारों जैसी चिंगारियां हजारों की तादाद में गिर रही थी और अभी अभी पैदा हुए अंधेरे को रोशन कर रही थी। पहले थोड़े से चमकदार धब्बे दिखे, लेकिन बाद में लगातार और ना थमने वाली बारिश शुरू हो गई। दिन और रात मिलकर एक जहन्नुम बन गए। इस टकराव के बाद जमीन पहले जैसी नहीं रही थी। सूरज की रोशनी अब नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। थोड़ी ही देर पहले जो जमीन नीली और हरी भरी दिखती थी, वो अब धुएं और आग से भरा हुआ एक जख्म बन गई। जले हुए पत्थरों की बारिश कई घंटों और फिर कई हफ्तों तक जारी रही। हर गिरने वाला एक पत्थर नई आग लगाता और आग की नदियां बन रही थी। जंगल एक ही सांस में गायब हो गए। समंदर उबलने लगे जिससे जहरीली गैसें उठने लगी। बचे हुए जानवरों ने पनाह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पनाह बची ही नहीं थी। हवा आग और जमीन शीशा बन चुकी थी। जमीन की सतह का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ चुका था और पूरी जमीन एक भट्टी में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि चट्टानें भी पिघलकर मोम की तरह बहने लगी। आग नजर की हद से पार दौड़ रही थी और हवा उसे और भड़का रही थी। सबसे बड़े डायनासोर्स गर्मी और घुटन से गिरकर मरने लगे। दरिया सूख गए और बादल गायब हो गए। सिर्फ जलजलों की आवाजें इस तबाही के सन्नाटों के साथ चलती रहीं। जमीन मुसलसल कांप रही थी, जैसे वो अपनी किस्मत के बोझ से आजाद होने की कोशिश कर रही हो। इस टकराव ने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बना दिया था। ये गड्ढा समंदर के पानी के नीचे छुप गया, लेकिन इसके जख्म हमेशा के लिए जमीन पर छप गए। जलजले की लहरों ने कई बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। ये लहरें समंदरों और रास्ते में आती हुई हर शय से टकरा रही थी। हर झटका कुछ ना कुछ मिटा रहा था। कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स गायब हो गए।
दिन काला हो गया और उस अंधेरे में राख गिरने लगी। बारीक और घनी धूल हर चीज को ढांपती चली जा रही थी। समंदर पर, लाशों पर, पत्थरों पर और मुर्दा जानवरों की खुली आंखों पर ये अंजाम की धूल थी। फिर भी जब सब कुछ जल रहा था, कुछ जिंदा बाकी रह गया था। जमीन के नीचे, बिलों के अंदर और नदियों में छोटी छोटी जिंदगियां डटी हुई थी। कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियां और छोटे छोटे मैमल्स, भूली हुई मखलूकात जिन्हें कभी किसी ने गौर से देखा भी नहीं था। ये छोटी छोटी मखलूकात कीचड़ में, दरख्तों के तनों में, चट्टानों के सुराखों के नीचे छुप गईं और इस अंधेरे में फ्यूचर की शक्ल बनने लगी। इस टकराव से उठी धूल महीनों तक और फिर सालों तक आसमान में जमीन के ऊपर तैरती रही। उस धूल ने सूरज से आने वाली रोशनी रोक दी। दिन और रात एक जैसे लगने लगे। पूरी दुनिया हल्के अंधेरे में डूब गई। टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया और जमीन की गर्मी गायब हो गई। हवा अपने साथ राख और मौत लेकर घूम रही थी। फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया। रोशनी ना होने की वजह से पौधे मरने लगे। पौधे खाने वाले जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और जब ये गिरे तो गोश्त खाने वाले जानवर यानी कि इनके शिकारी वो भी मरने लगे। टीरेक्स जो कभी जमीन के बादशाह थे, वो अब जले हुए दरख्तों के दरमियान खाने की तलाश में भटक रहे थे। ट्राइसेराटोप्स जो के झुंड बनाकर रहते थे, वो अब अकेले और थके हुए थे। भूख उन्हें कमजोर कर रही थी और सर्दी उन्हें तोड़ रही थी। जमीन एक ठंडी कब्र जैसी बन गई थी। समुद्रों में एल्गी गायब हो गई और खुराक का सारा निजाम तबाह हो गया। पुराने समुद्रों के मॉन्स्टर्स गायब हो गए जो कि खामोश पानी में घुट कर मर गए और इसी तरह एक एक करके वो बड़े बड़े जानवर हमेशा के लिए खत्म होने लगे। ये सब एक ही बार नहीं बल्कि एक लंबे और बेरहम वक्त में हुआ। हर नस्ल अपना आखिरी कदम उठाकर, अपनी आखिरी सांस लेकर और आखिरी बार दुनिया को देखकर गायब हो गई। वो जमीन जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, उसकी चारों तरफ अब धूल ही धूल थी। लेकिन उस धूल के नीचे अभी भी कुछ जिंदा था। वहीं अंधेरे में फ्यूचर का पहला दिल धड़क रहा था। फिर कई साल गुजर गए, कई दहाइयां गुजर गईं और वो धूल आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगी। सूरज की हल्की रोशनी काले बादलों के दरमियान से फिर से आने लगी और बर्फ पिघलने लगी। चुप और सुनसान जमीन पर नई दुनिया की पहली रोशनी पड़ी। एक दुनिया जहां अब डायनासोर्स नहीं थे। एक दुनिया जो फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी। शुरुआत में बड़ी खामोशी थी, लेकिन फिर हल्की सी हवा चली। हल्की हवा ने मैदानों को पार किया और राख को अपने साथ उड़ा कर ले गई। फीका और दूर से दिखने वाला सूरज जमीन को फिर से गर्म करने के लिए लौट आया। पहली बारिश की बूंदों ने काली पड़ी जमीन को धोया। पानी जमीन की दरारों में उतरा और नीचे छुपे बीजों तक पहुंचा और वो बीज सारी मुश्किलों के बाद भी अपनी जड़ें निकालने लगे। जिंदगी लौट आई, धीरे धीरे, डर डर कर और बहुत नाजुक अंदाज में। चट्टानों पर एल्गी उगने लगी। जले हुए तनों के दरमियान नए पौधे उगने लगे और छोटे छोटे फूल नई रोशनी में खिलने लगे। जमीन ने अब दोबारा सांस ली। सबसे पहले कीड़े मकोड़े वापस आए और फिर रेंगने वाले जानवर और बचे हुए परिंदे और मैमल्स जो अंधेरों में छुप कर इंतजार करते रहे थे। जो पहले छुप कर रहते थे अब मैदानों पर राज कर रहे थे। जहां पहले मॉन्स्टर्स जैसे जानवर चलते थे, वहां अब छोटे और फुर्तीले जानवर घूमने लगे। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। बड़े बड़े जानवरों का दौर खत्म हो गया था। अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गया और रोशनी फिर से आसमान और जमीन में भर गई, जैसे वक्त ने फिर चलना शुरू कर दिया हो। जख्मी और बदला हुआ प्लेनेट ठीक होना शुरू हुआ।
पहाड़ बढ़ते रहे और समंदर अपनी जगह बदलते रहे। हवाओं ने सहराओं को नए सिरे से तराशा, जैसे कोई ना दिखने वाले हाथ दुनिया को दोबारा बना रहे हों। और इसी के साथ जिंदगी फिर चलने लगी। जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, वो नई थी, अलग थी और ज्यादा नाजुक थी, लेकिन ज्यादा समझदार और हालात के मुताबिक ढल जाने वाली थी। जमीन वो सब कुछ नहीं भूली थी जो उस पर गुजरा था। उसकी याद चट्टानों में, फोसिल्स में और उन हड्डियों में छुपी थी जो करोड़ों सालों से मिट्टी के नीचे छुपी थी। आज जब हम चलते हैं या कोई पत्थर उठाते हैं तो हम उसी दिन की याद पर चल रहे होते हैं जब जमीन रुक गई थी। डायनासोर्स का खात्मा सिर्फ एक दौर का खात्मा नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने अगले दौर को जन्म दिया। क्योंकि इसी कहानी के खत्म होने से हमारी कहानी शुरू हुई। लाखों करोड़ों साल बाद उस जमीन पर ऐसे जानदार पैदा हुए जो आसमान को देखकर ये सवाल कर सकते थे कि वो कहां से आए हैं। ऐसे जानदार जो याद रखने, चीजें बनाने और ख्वाब देखने की सलाहियत रखते थे। यानी कि हम। उस टक्कर ने जिंदगी को पूरी तरह तबाह नहीं किया, उसने जिंदगी को बदल दिया। और उस सेकंड में, उसी जबरदस्त तबाही के लम्हे, एक नए दौर की शुरुआत हुई। और यूं वो वक्त जो एक दिन रुक गया था, चलता रहा और चलते चलते आज हम तक पहुंच गया। वो जिंदगी का खात्मा नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी।